Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we'll start our 15th chapter of first canto, where the Pandavas retire timely. So last time हम लोग देखा था when युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन वहां पे पहुंच गए थे, and then युधिष्ठिर महाराज was he saw different type of omens that happened around. शी जैकल क्राई कर रही थी और डोंकी सक उनके आसपास घूम रहे थे. So there were many things that he saw, and he kind of started thinking that something bad has happened, worse, that Krishna has left them. लेकिन कंफर्म करे कैसे, तो वहां पे अर्जुन आ जाते हैं. एंड देन अर्जुन आते तो he asks Arjun around 10 questions, 10 different possibilities why he seemed to be little डिप्रेस्ड या एकदम सैड थे. तो 10 पॉसिबिलिटीज उन्होंने पूछा था क्या था. जैसे कोई आपके शरण में आया था और आपने दिया नहीं किया, तो ऐसे काफी 10 क्वेश्चंस थे विच इज बेसिकली आइडियली ह्यूमन बीइंग जब जब ऐसा होता नहीं दे शुड फील सैड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है अभी कलयुग में. सारे के सारे के लिए तो होता नहीं है. फ्यू थिंग्स वी मे स्टिल बी फीलिंग सैड, लेकिन जैसे कोई प्रोटेक्शन में हम लोग नहीं देते तो मतलब खली वाली टाइप्स फर्क नहीं पड़ता है वैसे. तो वे सारे पूछे थे उनको, इनके इसके वजह से यू आर क्राइंग, तुम डिप्रेस लग रहे हो. बाद में इसके वक्त किसी को नोट किया नहीं. सो देन युधिष्ठिर महाराज सेड कि देन इज इट बिकॉज कृष्णा हैज लेफ्ट अस ऑल करके क्वेश्चन उनके छोड़ दिया था. सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. वी विल सी कि अभी नेक्स्ट चैप्टर में व्हाट इज अर्जुना's रेस्पॉन्स टू देम. सो अर्जुना नाउ विल बिगिन टू स्पीक ऑन 1 to 4. और काफी सारे बाद में when he responds he speaks about the different, he praises Krishna, he doesn't directly come to the, I mean he says जब कोई जाता है हम भी देखते हैं, कोई अगर गुजर जाता है, कुछ होता है, तो यूजुअली हम लोग उस व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं. तो वी when we remember that person or when we are in that shock, हम लोग उस व्यक्ति के साथ जो वक्त गुजारे थे अच्छे, वो हम लोग बताना स्टार्ट करते, राइट. वी स्टार्ट सेइंग कितना अच्छा था, उसने ये किया था करके हम लोग रोते थे. हम लोग साथ में जाते थे खेलने के लिए, लेकिन अभी मैं किसके साथ जाऊं, तो उस तरीके से हम लोग, राइट. अगर आप लोगों ने देखा रहेगा कभी, तो उस तरीके से लोग उस व्यक्ति के बारे में जो याद रहेंगे, स्वीट मेमोरीज थे, वो शेयर करना स्टार्ट करते थे. बिकॉज दे आर इन दैट ग्रीफ ऑफ लॉस. तो वैसे होने का एंड में युधिष्ठिर महाराज और सब रिटायरमेंट लेते, क्योंकि अभी कृष्णा नहीं है. सो अवर पर्पस, वी डू नॉट हैव एनी पर्पस, ऐसा सोच के वो निकलते हैं. सो विल स्टार्ट. रोहित, डू यू वांट टू टेक अप द स्लाइड? Hare Krishna. हरे कृष्ण. Srimad Bhagavatam 1.15. Sutta Goswami said, Arjuna, the celebrated friend of Lord Krishna, was grief-stricken because of his strong feeling of separation from Krishna. Over and above all Maharaja Yudhishthira's speculative inquiries. Due to grief, Arjuna's mouth and lotus-like heart had dried up. Therefore, his body lost all luster. Now, remembering the Supreme Lord, he could hardly utter a word in reply. With great difficulty, he checked the tears of grief that smeared his eyes. He was very distressed because Lord Krishna was out of his sight, and he increasingly felt affection for him. Remembering Lord Krishna and his well wishes, benefactions, intimate familial relations, and his chariot driving, Arjuna, overwhelmed and breathing were heavily, began to speak. Arjuna said, O king, the supreme personality of Godhead, Hari, who treated me exactly like an intimate friend, has left me alone. Thus my astounding power, which astonished even the demigod, is no longer with me. I have just lost him, because separation for a moment would render all the universe unfavorable and void like bodies without life. Only by his merciful strength and I able to vanquish all the lusty princes assembled at the palace of King Drupada for the selection of the bridegroom. With my bow and arrow, I could pierce the fixed target and thereby gain the hand of Draupadi. Because he was near me,
It was possible for me to conquer with great dexterity the powerful king of heaven, Indra Deva, along with his demigod associate, thus enable the fire god to devastate the Gandhava forest. And only by his grace was a demon named Maya saved from the blazing Gandhava forest, and thus we could build our assembly house of wonderful architectural workmanship, where all the princes assembled during the performance of Rajashu Yagya and paid your tributes. Your respectable younger brother, who possessed the strength of 10,000 elephants, killed by his grace, Jarasandha, whose feet were worshipped by mainly uh, Hare Krishna, Rohit. hello, can you hear me? Yeah, now I can Yes, hear you. yes, yes. I think mute पे चले Yeah, गए. I think it got lost somewhere in between. Where you have Worshipped by many kings. The last line Okay. ही बचा. Last, Okay. last. Whose feet was worshipped by many kings. These kings have been brought for sacrifice in Jarasandha, Mahabhairavanga, but भैरव यज्ञ. okay, Bhairav Yagna, but they were thus released. Later they said, tribute to your majesty. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Thank you. तो यहाँ पे so Arjuna was grief stricken and now he has started speaking. तो इमोशन स्ट्रॉन्ग थे. इट टेक सम टाइम. तो यहाँ पे अर्जुन का हेल्थ हालत कैसा था? सो हिज हार्ट वाज ड्राइड अप. उसका उसका मुंह भी पूरा सूख गया था बिकॉज ऑफ दिस. हिज बॉडी लस्टर. जब कोई कितना भी अच्छा दिखता रहेगा बट ऐसा कुछ सैड न्यूज रहता है, घर पे डिमाइस रहता है या कुछ भी रहता है, देन वी सी दैट दे आर कंप्लीट डल, राइट? पूरा बच्चों में हम लोग देखते हैं, राइट? बच्चे ऐसा एकदम बीमार हो जाते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है तो पूरा एकदम मुंह लटक जाता है, बोलते हैं एकदम जैसे हमेशा एकदम एक्टिव एनर्जेटिक लगते हैं या फिर ऐसा बोलते लस्टरस ऐसा टाइप फील होता है. तो दैट टाइम दे लुक लिटिल डल एंड ऑल. तो ये दिस वाज इट वाज रियली बिग न्यूज फॉर अर्जुना एंड विल बी बिग फॉर पांडवास एज वेल. जैसे ये ब्रेक करेगी न्यूज. सो उनके उनका कैसे तक करके उन्होंने सब थोड़ा सा आवाज वगैरह तो ये करके थोड़ा सा हार्ट स्ट्रॉन्ग करके देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट हिम. सो स्टार्टेड रिमेम्बरिंग. फर्स्ट स्टार्टेड रिमेम्बरिंग कि कृष्णा ने क्या कैसे क्या हुआ था करके. सो what was the rasa with Arjuna? Anyone remembers? Arjuna और कृष्णा का कौन सा रसा कृष्णा ने किया था अर्जुना के साथ? दास्य रस. हरि बोल. दास्य रस फ्रेंडशिप का. So Arjuna was very intimate friend of Krishna, and we know there are many such cases जहाँ पे कृष्णा ने जैसे उनके लिए अपने बहन का भी शादी उनसे करवा दिया था, सुभद्रा मैया का. So she was married to Arjuna and in a very dramatic way. अर्जुन को भगाने बोल दिया था. नहीं तो बलराम दुर्योधन से शादी करने वाले थे. So अर्जुन ने भगाने बोल दिया था सुभद्रा को. And Subhadra and Arjuna they loved each other, but कैसे था वो दिल में वो टाइम पे वैसे दिल में रख के एक दूसरे को सिर्फ they had that feelings. And Krishna knows about everything and he knew that Arjuna is the best choice. तो उसके अलावा he also was a charioteer in the battlefield for Arjuna. Charioteer मतलब रणभूमि में सबसे नीचे वाला दर्जा, मतलब इतने नीचे कि मतलब अगर वो मर भी गया तो भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो वैसे भी कुछ एक्स्ट्रा ये नहीं कर, सिर्फ घोड़ा रथ चलाने वाला था. So this is the position of it. It is the lowest possible position in a war. तो कृष्णा took up that position just for Arjuna. और ये जो renunciation हम लोग बात करते हैं, so this is one example of Krishna. इतना सारे होने का, फेम ब्यूटी ये सब होने के बावजूद renunciation रखना is very difficult and only भगवान can show that kind of what you say characteristic. he became charioteer. बाद में उन्होंने पांडवस को, and thus I mean after winning the war he helped to establish Pandavas as the ruler of the world. जब पहले हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया, जब अपने भारत जो इंडिया में जो हुआ करते थे, सो हम लोग भारतवर्ष, भारत का राजा जो बोलते थे, भारत एक्चुअली इज
was supposed to be the whole world at the minimum. So we will not go about more technicals, वो आगे भागवत में आ ही जाएगा भारतवर्ष क्या है करके, but let's at least seek at a high level, it is at least at least this world. तो जो ये हम लोग बोलते जैसे युधिष्ठिर महाराज वगैरह या फिर राम जी थे, तो दे वर एक्चुअली द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो लोग जो अलेक्जेंडर वगैरह हुआ करते थे उस तरीके से वो लोग सब जगह पे अटैक करके, एंड दे वर नॉट किलिंग इनोसेंट पीपल एंड ट्राइंग टू रूल. सो क्या क्या हुआ करता उस वक्त, अश्वमेध यज्ञ हुआ करता. सो एक घोड़े को वो लोग पूरे वर्ल्ड का चक्र करते थे, अलग अलग किंगडम में से घोड़ा जाता था, एंड इफ यू डू नॉट स्टॉप द हॉर्स, मतलब ठीक है, यू आर काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग माय सुप्रीमेसी. इट डजंट मीन दैट दे विल इंटरफियर या वो लोग किंगडम में आके कुछ गलत शलत करेंगे. इट जस्ट मीन दैट यू आर सपोर्टिंग अस, एंड इफ देयर इज सम डिसीजन टू बी टेकन, आई विल लीड दैट डिसीजन. लीडर, काइंड ऑफ लीडर, नॉट बॉसी, बीइंग लीडर. और अगर you have some concerns, you want to challenge me, you think that yes I am better than you, you have to stop the horse. और जो हॉर्स को रोक देगा, then जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, वो लोग सेना भेज के वो हॉर्स को रिलीज करते थे फाइट करके. अगर रिलीज नहीं कर पाए, मतलब जिसने रोका था, then he becomes the kind of supreme than this person. तो यहाँ पे भी he was अश्वमेध यज्ञ जो हुआ था, he was successful and कोई रोक नहीं पाया था. He was the ruler of the whole earth, not just the boundary of India, जिसको हम लोग अभी भारत बोलते हैं. So भारत was actually the whole world, और जो छोटा होके अभी सिर्फ इतना ही भारत हम लोग बोलते हैं. So then he started speaking about it, and he started speaking about different things that has happened. So fifth में प्रभुपादा is giving some purport हम लोग देखते हैं. So यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि intimate friend, thus my astounding power which astonished even the demigods is no longer with me. So Prabhupada says in the purport कि जब भगवान descends, when Lord descends to the भगवान पृथ्वी पे आते हैं, then along with him what happens, eternal ever liberated associates also come. जब कभी भी पूरे एंट्रोच के साथ आते हैं, हम लोग देखा, अगर चैतन्य महाप्रभु जैसे आते हो या फिर राम जी जैसे आते हो या फिर कृष्ण से आते हो, पूरा पास टाइम करने के हेतु आते हैं, पूरा लंबा पास टाइम, नॉट जस्ट वन नरसिम्हा से एक मोमेंटरी ऑब्जेक्टिव अटेंड करके जाने का नहीं, जब प्रॉपर पास टाइम फ्रॉम बर्थ ऐसा करके आते हैं, देन ही कम्स विद द कंप्लीट एंट्रोच. तो पूरा उनका याद है, कुछ लोग पहले आके सेट हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा बाद आते हैं, कुछ लोग उनके साथ आते हैं. तो सिमिलरली लॉर्ड जब आए थे, तब अर्जुना, पांडवास, कुंती महारानी, ये सारे जो है, दे आर द इटर्नल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड. तो वो ब्रजवासीज, दे ऑल केम विद द लॉर्ड. जब राम जी आए थे, तब धृतराष्ट्र, सारे जो अयोध्या वासी थे, ये सारे एक साथ आए थे, उनके साथ उनके इटर्नल एसोसिएट्स है वो. बाद में गौरंग महाप्रभु के वक्त भी, जो नित्यानंद प्रभु हो या फिर पंचतत्व या फिर और बाकी जितने सारे हम लोग नाम देखते हैं, सो दे आर ऑल्सो इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड. तो वो भगवान के साथ आए थे. पास्ट टाइम भगवान अकेले आते नहीं. जब कोई पीएम वगैरह आता है तो कैसे आता है, पूरा एकदम मिलिट्री के साथ, मिलिट्री मतलब उसके बॉडीगार्ड्स के साथ, और पूरे गाड़ी आगे पीछे, पुलिस प्रोटेक्शन रहता है. तो उसी तरह से भगवान जब आते हैं, जो पूरे सृष्टि के प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो उनके साथ भी आगे पीछे सारे लोग आते हैं उनके पास टाइम में सपोर्ट करने के. तो यहाँ पे उनका हेतु भगवान को प्रोटेक्शन देना नहीं होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर केस में होता रहेगा, बट their objective is to give pleasure to the Lord by participating in his pastime. भगवान है सम ऑब्जेक्टिव, जब आते पृथ्वी पे कुछ करना चाहते हैं, बराबर. तो वो जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते, तब सारे जो डिवोटीज हैं भगवान के सेवा में लग जाते हैं. एंड जब भगवान चले जाएंगे, क्योंकि नाउ दे हैव नो अदर पर्पस, दे आल्सो बाय सम ड्रामेटिकल वे या जो भी है, दे आल्सो मूव आउट ऑफ दिस पास्ट टाइम. It is stated in Bhagavad Gita 4.5 that Lord and his eternal associates are descent from the earth many times, but the Lord remembers all the different roles and incarnations, whereas the associates by his supreme will forget them. हम लोग जो भूलते हैं, वो हम लोग महामाया के इन्फ्लुएंस से भूलते हैं. जो हम लोग है, जो भगवान की जो मटेरियल एनर्जी है, उसके इन्फ्लुएंस से हम लोग भूलते हैं. हमें पिछला जन्म याद नहीं है. अगर किसी को याद भी आता है, वो मटेरियल एनर्जी का
वो उनका ही कुछ खेल है. दे Lord wants that person to remember due to whatever reason it may be. But usually as a general what we see is किसी को याद नहीं रहता, and that is because the influence of the महामाया. ठीक है. लेकिन जब डिवोटीज, इटर्नल डिवोटीज, नित्य जो भक्त है भगवान के, जो भूल जाते हैं पिछले जन्म, दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ योग माया. सो उनका जो सफरिंग होता है, उनका जो भी होता है, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योग माया, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ ऑल द पास्ट टाइम. हम लोग का जो है वो सब महामाया में होता है, बट डिवोटीज आर ऑलवेज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ योग माया. व्हेन आई से प्रोटेक्शन, व्हिच मींस दे विल नॉट बी टच बाय महामाया. उनके साथ ऊपर नीचे होगा लाइफ में, सब दुख होगा, दैट इज ऑल टू सर्व द पर्पस ऑफ द लॉर्ड, और कुछ नहीं. unnecessary they will not take any what you say any pain. बताते वक्त बोलेंगे कि इन्होंने पिछले इसमें ऐसा हुआ था, इसने ऐसा किया, ऐसा कर्म हुआ था, वो सब कुछ स्टोरी आगे पीछे रहेगा. जैसे कृष्णा का उनको शाप मिला था, इसलिए वो धनुष उनके पैर में चला गया, और सारे यादव डायनेस्टीज को ये हो गया. सो वो सब ठीक है, वो आगे पीछे स्टोरी बना देते, भगवान ही सब अरेंज करते हैं स्टोरी के लिए, और एल्स इट विल नॉट मेक एनी सेंस, राइट? कि भगवान को ब्रह्मास्त्र में भी उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ, ब्रह्मास्त्र नुकसान नहीं कर पाया. एक छोटा सा किसी ने शाप दिया हुआ कुछ, एक धनुष्य का उनके पैर पे लग गया, उसमें इसमें कोई कैसे मर सकता है? नॉर्मल इंसान नहीं मर सकता है. सो आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जब ये पास्ट टाइम बात किया जाता है भगवान का, तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ऐसे बड़े बड़े चीजों में कुछ हुआ नहीं, इससे क्या होगा? सो दिस इज ऑल द पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड. स्वयं सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं. तो उस तरीके से भगवान के अलग अलग पास्ट टाइम्स वगैरह, तो ही क्रिएट्स ऑल. तो यदुस को भी जब मारना था, देन ही क्रिएटेड अ सिनेरियो जहाँ पे सारे यदुस एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, एंड देन ही हिट्स देम ऑल. तो एंड देन ही किल्स देम. सो उस तरीके से कुछ ना कुछ तरीके से दे काइंड ऑफ एंड देयर पास्ट टाइम्स ओवर हियर. एंड सिमिलरली when the Lord takes away with him, similarly the Lord takes away with him all his associate when he delivers from the earth. जैसे अभी हम लोग बात किया यदु या डायनेस्टी का एक दूसरे को मारा, या फिर अभी हम लोग इनका देखेंगे पांडवस क्या करते हैं, कैसे एंड करते हैं. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं किस तरीके से हर एक डिवोटी एंड, जब भगवान जाते हैं दे लिव, अनलेस अंटिल दे हैव स्टिल टू कंटिन्यू फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. जैसे फॉर एग्जांपल चैतन्य महाप्रभु गए तो जीवा गोस्वामी वहां पे थे. He is an eternal associate of the Lord. So Acharya said that he is Manjiri. I do not recollect the name, but I think Vilasa Manjiri or something. So he is a Manjiri, so eternal associate of the Lord. Lekin he stayed, he continued because he had some what you say purpose that has been defined by the Lord. हनुमान जी जब भगवान चले गए थे, बाकी सारे चले गए थे, बट हनुमान जी रह गए क्योंकि उनको रुकना था कि जहां पे मतलब टू राम का जहां पे कथा होगा, he has to be present over there, और काफी सारी चीजें थे जो रामायण में. so that is the story. so कुछ लोग फिर भी they continue to stay, but there are परीक्षित महाराज, he had to stay, he also had to stay because भागवतम का कथा जो है परीक्षित महाराज से उनके वो एक निमित्त मात्र होने वाले थे, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं. so कुछ लोग, कुछ devotees still they continue to stay, that is because Krishna wants them to, because that is the part of his bigger plan. but otherwise the majority जो है devotees they live along with the Lord, Supreme Lord. so the power, and similarly the Lord takes away with them all the associates when he disappears from the earth. The power and energy which were bestowed upon Arjuna were required for fulfillment of the mission of the Lord. But when his mission was fulfilled, the emergency powers were withdrawn from Arjuna, because the astounding powers of Arjuna, which were astonishing even to the denizens of heaven, were no longer required, and they were not meant for going back to Godhead. अभी उसकी जरूरत नहीं है भगवान की इसी पास्ट टाइम में, और वो पावर लेके वो अब बैक टू गॉडहेड नहीं आ पाएंगे. सो इट इज इन देयर इंटरेस्ट कि भगवान ने पावर ले लिया. अगर पावर रहता तो मे बी डेमिगॉड्स उनके पास वापस आते, कृष्णा ने अभी तुम ही हमें इन राक्षसों से बचाव करो करके, दे माइट हैव केप्ट अर्जुना इन्वॉल्वड इन दिस किलिंग द डेमन्स एंड ऑल. तो पावर निकाल दिया ताकि नाउ अर्जुना अंडरस्टैंड दैट नो, आई कैन नॉट बी ऑफ एनी यूज टू डेमिगॉड्स एंड ऑल. डेमिगॉड्स भी वो समझ पाए, एंड देन दे रिटायर.
वो रिटायर होके वापस भगवान के धाम चले जाए। सो लॉर्ड डज इट ऑल फॉर ए पर्टिकुलर विथ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पर्पस इन माइंड। सो आगे जब अर्जुन बोलते हैं आई हैव जस्ट लॉस्ट हिम whose separation for a moment would render all the universes unfavorable and void like bodies without life, तो वहां पे प्रभुपाद में बोलते हैं कुछ कुछ टेक्निकलिटी बताते हैं, which is something that we can remember. The Lord expands himself by innumerable parts and parcels as swamsha and vibhinna amsha. So swamsha मतलब क्या, भगवान के जो है विष्णु तत्व उसको स्वांश बोलते हैं, जैसे परमात्मा इज द स्वांश ऑफ लॉर्ड। लेकिन विभिन्न अंश मतलब क्या, मतलब लिविंग बींग्स, हम लोग वी आर पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ द लॉर्ड, बट वी आर विभिन्न अंश, वी आर सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड। बट स्वांश मतलब क्या, दे हैव द प्रॉपर्टी, दे आर द लॉर्ड, वो स्वांश। सो एज द लिविंग, ये टेक्निकलिटी आप ध्यान में रख सकते हैं। सो स्वांश और विभिन्न अंश। As the living being is the important factor in the material body, for without a living being, the material body has no value. Similarly, without Paramatma, the living being has no status quo. जैसे जीव के बिना शरीर डैडी है, बराबर उसी तरह से परमात्मा के बिना इस जीवात्मा का भी इस मटेरियल बॉडी में वो कुछ नहीं कर सकता। Similarly, the Brahman and Paramatma has no local standing without the supreme personality of without the supreme Lord Krishna, मतलब भगवान। This is thoroughly explained in the Bhagavad Gita. They are all interlinked with each other or interdependent factors. Thus, in the ultimate issue, the Lord is the summum bonum and therefore the vital principle of everything. So परमात्मा और ब्रह्मन जो है, ब्रह्म ज्योति, ये भगवान से ही आते हैं, मतलब कृष्णा से ही आते हैं। So they have no existence if without Krishna. Those called the independent existence and Krishna. They are independent, but at the same time they are dependent on Krishna, because Krishna is the original personality of Godhead. ठीक है? So this, see, Brahman, Paramatma हम लोग जो बोलते हैं, they are Lord himself, भगवान ही है, but they exhibit very limited properties. जैसे राम जी और कृष्णा जो है, तो राम जी जो है मे बी ऑन दिस मटेरियल वर्ल्ड या फिर स्पिरिचुअल प्लैनेट में राम जी जो है, his purpose is different. The purpose of being Ram जी, उसके हिसाब से जो पावर्स मैनिफेस्ट करने हैं वो करते हैं, वो बाकी पावर्स मैनिफेस्ट नहीं करते। एंड दैट इज ट्रू फॉर एनी इनकारनेशन। सो दे काइंड ऑफ, इवन विष्णु नारायण जो है, विष्णु नारायण हम लोग देखते हैं, उनके जो है दे गो अप टू 60 out of 64 qualities that Rupa Goswami has mentioned. लेकिन 4 क्वालिटीज है वो सिर्फ कृष्णा ही एग्जिबिट, सो ही कृष्णा एग्जिबिट 64 out of 64। लेकिन विष्णु बाकी विष्णु तत्व एंड विष्णु है, दे एग्जिबिट अप टू मैक्सिमम 60 प्रॉपर्टीज। शिवजी एग्जिबिट्स अप टू 55 प्रॉपर्टीज out of 64, एंड ब्रह्मा, द बेस्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, दे एग्जिबिट अप टू 50। बाकी जो है वो 50 भी करेंगे लेकिन आगे पीछे रहेगा, मतलब कुछ जगह पे वो नेग्लिजिबल रहेगा, कुछ जगह पे थोड़ा बेटर करेंगे। बट जो बेस्ट जो जीवा है, द बेस्ट पोजीशन ऑफ ए जीवा, दैट इज ब्रह्मा, ही कैन एग्जिबिट अप टू 50। सो दिस आर द डिफरेंट क्वालिटीज। सो भगवान जो है, इवन विष्णु तत्व में भी कृष्ण जो है, he has all the qualities, in the sense he exhibits all the qualities. बाकी जो है, या माता जी, हरे कृष्ण। Prabhu, just for my this one, I skipped this line. So how many qualities Krishna himself has? 64, right? Yeah, 64 out of 64. All are okay. And even Narayana has 4 quality less. Yeah, 60. Okay. So it is not that कि नारायण वो क्वालिटीज एग्जिबिट नहीं कर सकते, बट he will not do it because that is not the requirement of that particular incarnation or expansion. जैसे अभी ये 4 क्वालिटीज में से एक क्वालिटी है डिवोटीज का, भक्त वत्सल का। तो द वे ही डज पास्ट टाइम्स विद द डिवोटीज, उनके कंधे पे लेके घूमना, उनका रथ चलाना, दैट कृष्णा विल डू, बट नारायण विल नॉट डू दैट। डोंट, इट इज नॉट दैट नारायण के हाथ बंधे हुए, बट his position, his incarnation or his expansion, existence of Narayana is like a king. तो किसी अपने भक्त को अपने कंधे पे बिठा के नहीं लेके सकते, that is not what Narayan will do. So अगर किसी को ऐसा डिवोटी की भगवान के साथ ऐसा बॉन्डिंग बनाना है,
then he has to go beyond Narayana, which is he has to go to Krishna. वहीं पे कंधे पे बिठा सकते हैं भगवान, और किधर नहीं बिठाते. So this is how. So Narayan can do that, but he will not do that because Narayan limits himself. He himself limits himself to these 60 qualities, and that is what defines Narayana. Same for Ram. राम जी भी हनुमान को कंधे पे बिठा के नहीं लेके जा सकते. हनुमान जो है वो राम जी के दासी है और राम जी के पैरों के नीचे बैठे रहेंगे हमेशा. बट अगर कृष्णा होते तो कृष्णा, हम लोग देखते थे कृष्णा अर्जुन के पैरों, शायद जैसे सुदामा के पैर के नीचे बैठे थे, उनके पैर धोते थे. So even though Sudama is a devotee of Krishna, but Krishna will reciprocate to the fullest without any limitation. That only Krishna can do. That is one of the 4 qualities. But Narayana ho ya fir baki incarnations ho, they will not do that. They will reciprocate in a very limited, restricted way. But also Krishna is for the fullest. Sorry, Prabhu. Also with the gopis, the leelas, only yes, Krishna gopis leelas. Yeah. इतने सारे गोपियों को कृष्णा के लिए जो प्यार था, ये ऐसे माधुर्य रस रेसिप्रोकेट किया. लेकिन राम जी ने नहीं. His their role was not like a सारे गोपियों के साथ, सारे रानियों के साथ रेसिप्रोकेट नहीं. So his role was as a king. He came there to exhibit what an ideal king should be, and उसके वजह से आइडियल किंग के हिसाब से he exhibited only those properties. वो बाकी पास टाइम्स उन्होंने एग्जिबिट नहीं किया. That is, he restricted himself because the role demanded it. It is not that Ramji कर ही नहीं पाते थे. He could do it. He is Supreme Lord himself. But then the purpose of Ramji coming over here as an ideal king या ideal बेटा जो भी है, that will be defeated. And भगवान करते तो सब perfectly करते हैं. Unnecessarily वो deviation लेते नहीं है, जैसे हम लोग लेते हैं. अगर कोई आए, अरे मुझे आपसे शादी करना है, ये करना है, हम लोग बोलेंगे यार ठीक है, हम लोग आइडियल किंग के लिए तो आए थे, लेकिन यार थोड़ा सा ठीक है, ये अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है, इससे भी शादी कर लेता हूँ. भगवान इज अल्टीमेट रेनोन्सेंट. सो भले उनके पास सब है, एट द सेम टाइम इज ऑल्सो रेनोन्सेंट. तो नो डिविएशन, नथिंग. जो है पर्पस फुलफिल करना है, खत्म. एंड दैट पर्पस इज ओनली फॉर द वेल बीइंग ऑफ द लिविंग बीइंग्स, और कुछ नहीं. हम लोग के लिए उन्होंने ये सब रेस्ट्रिक्शन रखा. So Lord, this is what it is. And then बाद में शिव जी के कुछ 55 qualities है, and ब्रह्मा जी के, because he is जीवा, ब्रह्मा is जीवा, he has 50 qualities. So this is so Lord is this ultimate, and Krishna is ultimate among all the ultimate. और उसमें भी जब परमात्मा का, सॉरी, ब्रह्म ज्योति का हम लोग बात करते हैं, that has even lesser qualities. not even 60, because उनमें कुछ attributes नहीं होते. So it doesn't reciprocate. ब्रह्म ज्योति में reciprocation नहीं होता है. So you do something, it will not reciprocate back to you. There is no reciprocation. It is just light, God himself, but in the form of light, and the only purpose is to give eternity, और कुछ नहीं. जीवन मृत्यु के साइकिल से बाहर आना है. किसी को सिर्फ जीवन मृत्यु साइकिल से बाहर आना और कुछ करना नहीं, भगवान की सेवा, तो जाके वो लाइट में जाके बैठ जाओ, लाइट के नीचे, खंबे के नीचे बैठ जाओ, और कुछ नहीं. There is nothing that he will do. He will feel peace because he is with the Lord. But Lord has restricted his qualities, so he will not see the form of Lord. He will see no reciprocation, no love, nothing. So इसलिए भक्त जो रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं धरती पे रहूंगा, वापस धरती पे आ जाऊंगा, या फिर हेलिश प्लैनेट में चला जाऊंगा, बट ब्रह्म ज्योति में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे कुछ भी, बिकॉज देयर, एक बार वहां पे जाने के बाद जो व्यक्ति होता है, he kind of goes into that meditation state और ऐसा कुछ जहाँ पे पीस मिलता है, and there is no opportunity for him to actually engage in the service of the Lord. लेकिन पृथ्वी पे, ये अर्थ पे, there is ton of opportunities for Krishna, for the devotee to engage, for a jiva to engage in the service of Krishna. And that is why ये जो है, जो अर्थ है, जो हम लोग भूमि बोलते हैं, that is the best, that is the karma bhumi. It is also called a karma bhumi. It is the best place where a person can get an opportunity to serve. जो नीचे तलातल लोक में अगर है, वहां पे there is तलातल और स्वर्ग लोक में there is good number of enjoyment, sense enjoyment. तो वहां पे तलातल पातल में लोग वहां पे एंजॉय करते हैं, स्वर्ग से भी ज्यादा एंजॉय करते हैं. और अगर नर्क लोक में चले गए तो वहां पे तो पेन, काफी सारा पेन रहेगा, तो वहां पे भगवान को याद करने का चांस नहीं, और जहां पे एंजॉयमेंट है वहां पे भगवान को याद करने का चांस नहीं. तो ये जो है पृथ्वी लोक, that is kind of balanced. ऊपर नीचे रहेगा एज पर योर कर्मा, बट that is still balanced, and you can still
serve Lord. You can still remember, you can still get an opportunity to connect with the devotees, जो बाकी किधर भी नहीं होता है. So this is the best place that we should actually, we are in the best place with the best situation possible in Kali Yuga, and we should not lose that opportunity. So then he starts speaking about different things. जो जैसे 7th verse में वो बोलते हैं कि only by his merciful strength was I able to, वो द्रौपदी के बारे में बात करते हैं. With my bow and arrow I could pierce the fish target. तो ये हम लोगों को पास्ट टाइम पता है, राइट? सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर फास्ट टाइम. तो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे द्रौपद जो है, हमें अगर पता, द्रौपद ने, हम लोग शायद द्रौपदी का मैंने शेयर किया था, पता है, द्रौपद ने यज्ञ किया था. एंड धृष्टद्युम्न वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धृष्टद्युम्न वाज द सन, राइट? किसी को याद है इफ आई एम करेक्ट और नॉट? धृष्टद्युम्न द्रौपद के पुत्र who killed द्रोणाचार्य. एंड उन्होंने he wanted someone like Arjuna to be his son, लेकिन अर्जुना was already, I mean, वो कुंती महारानी के पुत्र थे. तो उन्होंने बोला अगर ऐसा मेरा वो बेटा नहीं, because he had seen, he is very powerful, he had heard about Arjuna and very righteous also. ऐसा नहीं कि सिर्फ ताकत और अंधा राजा से घूम रहा है. So he was righteous, he was an ideal person, he desired to have him as a son. लेकिन अभी तो सन तो नहीं बन सकता, बेटा तो नहीं बन सकता. सो मेरा दामाद बना तो, और वो हेतु से द्रौपदी को यज्ञ से उन्होंने he prayed for Draupadi. So Draupadi, the one of the purposes of Draupadi to appear was to marry Arjuna. So Draupadi had a desire that Draupadi should marry Arjuna. और उन्होंने क्या किया, सो ताकि एक सिस्टमेटिक वे से, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए बायस, क्योंकि बाकी के राजा सब ये करेंगे कि हम लोग को आपने अपॉर्चुनिटी दिया नहीं, ऐसा कुछ रहेगा. सो ही जस्ट wanted to prove why Arjuna, तो अर्जुना का थोड़ा अप्रिशिएशन हो जाए, उनका ग्लोरिफिकेशन हो जाए. सो उन्होंने इस तरह से स्वयंवर रचाया था, और उसमें एक चैलेंज रखा था that only and only Arjuna can do it, while Karna was a tight competitor to Arjuna, but still Arjuna was much better than Karna, but Karna still had a slight chance that he could win that. तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, एक फिश ऊपर रखा था सीलिंग में, और एक व्हील रखा था जो फिश को प्रोटेक्ट, रोटेटिंग व्हील. सो इफ यू लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, फिश रहेगा और फिश के नीचे एक व्हील रहेगा जो रोटेट करता रहेगा कंटिन्यूअसली, एंड यू हैव टू पियर्स द आई ऑफ द फिश. जो स्पेस रहेगा व्हील के स्पेस में, वो स्पेस में से जाके वो आई को पियर्स करना चाहिए, वो आग को लगना चाहिए, फिश की, मछली के आग को. सो एक तो पहले वो गैप छोटा रहता है व्हील में, और रोटेट हो रहा है, और उसमें से जाके मारना है, और उसके ऊपर डायरेक्टली ऊपर दिखना नहीं, नीचे देखना है. नीचे मटका रखा रहेगा पानी का, और पानी का मतलब, मटका मतलब थोड़ा सा हवा आता जाता रहेगा, राइट? तो थोड़ा सा ट्रेम्बलिंग टाइप वाटर रहेगा, थोड़ा उसमें रिपल्स आते रहेंगे. उसमें से ऊपर उधर देख के ऊपर की तरफ व्हील के छेद में से आग को, मछली के आग को मारना है. सो दिस इज द, आई मीन, अभी के टाइम पे तो सोच भी नहीं सकते ऐसा कोई रहेगा, बट वो टाइम पे इट वाज, वी हैड पीपल लाइक अर्जुना हु कुड डू दैट. सो उन्होंने उस तरह से किया था, एंड देन सारे लोग आए थे, और एज एक्सपेक्टेड सब फेल हो गए थे. एंड कर्णा वाज देयर, दो ही हैड अ स्लाइट चांस कि वो विन हो सकता है. तो द्रौपदी didn't want to take any chance, so very tactically she kind of उसके भाई के थ्रू, धृष्टद्युम्न भाई के थ्रू, उन्होंने कर्ण को वो कंपटीशन से हटवा दिया. So and then Arjuna came in the, because he was in the form of a brahmana. तो उन्होंने वो वनवास में थे, राइट? सो उन्होंने वो अचीव कर दिया. So it is Arjuna says that it was because of Krishna he could do that. There is a WhatsApp message that keeps rotating. मैंने WhatsApp में देखा, यहाँ पे अर्जुन कृष्ण बोलता है, ये I'm not sure if that is true. It may be just build up, but वहाँ पे अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि मैंने धनुष्य मारा था, ये किया था, मछली के आंखों को आपने क्या किया था मेरे लिए. I doubt Arjuna would have said that it is all made up thing. But then Krishna told Arjuna कि I made the water still.
So मैंने तुम्हारे लिए पानी स्टिल रखा था so that you could focus, which is okay, but it is not. I strongly believe it is not from Mahabharata. किसी ने मेड अप किया था, but even there we see, I mean, यहाँ पे now we understand it is not just the water that Krishna was Krishna ने stay. It was even the power of his क्या बोलते हैं उसको, his talent of archery या जो भी है, end to end सब कृष्णा की वजह से हुआ था. That is now we understand from this particular sloka. So then because he was near me, it was possible to conquer the great dexterity of the powerful king of heaven Indradev along with his demigod associates, and devas the Khandwa forest or demon and his great demon. So यहाँ पे माया दानव हम लोग ने आगे आएगा भागवतम में 10th कैंटो में शायद आने वाला है. तो दानव जो था, बिकॉज एक खांडवा करके फॉरेस्ट था, वहां पे दानव रहता था. एंड देन because there was some fire and he asked for protection from Arjuna, so Arjuna gave him some protection. तो यहाँ पे Prabhupada has mentioned in the purport. So he was actually a demon and उनको demon को उसने ये किया था, protection दिया था, इसलिए माया demon then he built up Indrapas. तो खांडवा forest इनको मिला था, right? जब वो लोग आए थे स्टार्टिंग, जब वापस पांडव आए थे, पांडु को खांडवा फॉरेस्ट दे दिया था. खांडवा मतलब एकदम कुछ नहीं, सुनसान जगह है. तो माया डीमन व्हाट ही डिड, ही बिल्ट इंद्रप्रस्थ ओवर देयर, which was even beautiful than any other kingdom that people would have seen. So he had that illusion power, पूरा माया डीमन को. So यहाँ पे परपट में Prabhupada says, he picks up some interesting point. He says different perspectives. The demon Maya was an inhabitant of the forest Khandwa, and when Khandwa forest was set on fire, he asked protection from Arjuna. Arjuna saved his life, and as the result of this, demon felt obliged, and he reciprocated by building a wonderful assembly for Pandavas. अभी यहाँ पे आगे परपट में Prabhupada says कि Lord Krishna wanted to kill him, क्योंकि वो दानव था. Krishna wanted to kill him. So when he was chased both by the fire and by the wheel of the Lord Krishna, चक्र के जब वो फायर लगा था जंगल में, फायर अग्निदेव वो पूरा फायर खाना चाहते थे, फॉरेस्ट खाना चाहते थे. So to protect himself from Agni and also chakra of Krishna, he took shelter of such a devotee as Arjuna, who saved him from the wrath of fire of Lord Shri Krishna. उन्होंने devotee का शरण लिया. So devotees are therefore more merciful than the Lord. और ये हम लोग अमरीश महाराज के पास्ट में भी देखते हैं, राइट? So anyone knows अमरीश महाराज का पास्ट में क्या हुआ था? Very similar. Anyone recollects what was there in Amrish Maharaj past time? कौन सा प्रभु जी, कम अगेन? अमरीश महाराज का जो पास्ट टाइम है. Amrish Maharaj, this one when what is the name of that? He was trying to kill him, and the Krishna saved him. Shukracharya? No. He was Durvasa Muni. Durvasa Muni. So he was about to curse him. Curse him, yeah. तो हाँ, मतलब कर्स, he about to curse him, नहीं, cursed him. और जो आपने सही बोला, वो राक्षस आके उसको मारने जाता है. So then Chakra comes and he kills that Rakshas, and then he goes after Durvasa Muni. Durvasa Muni, Brahma, शिव जी और स्वयं विष्णु के पास गए, जिनका चक्र है. तो उन्होंने भी बोला कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता करके, तेरा अंत निश्चित है. And then where did he go? He went back to Amrish Maharaj. उनके पास चले गए. So Amrish Maharaj ने उनको शरण दिया. And then Amrish Maharaj prayed to Sudarshan Chakra कि please उनको उनकी जान बख्श दो करके. So there are many such instances जहाँ पे हम लोग देखते कि devotees के association, devotees के चले में आने से भगवान भी हमें माफ करते, भगवान भी हमें मारते नहीं है. So devotees, उनका जो है, that is why devotees are even more merciful than the Lord. So यहाँ पे प्रभुपाद वही बोले कि devotees are therefore merciful than Lord, and in devotional service the mercy of the devotee is more valuable than the mercy of the Lord. So devotees का mercy मिलना even more valuable है. इसलिए जब अपने हॉल में जब आता है devotees आते हैं, आज जब महाराजास, we should not lose that opportunity. We should always take that opportunity, because there उनके mercy मिला तो भगवान का mercy मिल ही जाएगा. So Arjuna declined to accept any offer from any action. So Lord Krishna, however, being pleased by Maya for his taking shelter of devotee, asked him to render service unto King Yudhishthir
by building a wonderful assembly house, Indraprasth. The process is that by the grace of devotee, the mercy of the Lord is obtained, and by the mercy of the Lord, a chance to serve the Lord's devotees obtained. ये गोल है. And there is one more information about भीमा का जो गदा था वो भी माया दानव ने दिया था. So this is a wonderful statement which we keep saying that डिवोटी के मर्सी से हमें भगवान मिलता है और भगवान के मर्सी से हमें वापस डिवोटी का सेवा करने का मर्सी मिलता है. एंड जो पहली बार डिवोटी मिलता है वो भी भगवान के मर्सी से ही मिलता है. सो इट इज बेसिकली साइकिल. कहाँ से स्टार्ट होता है पता नहीं, बट दैट इज इट इज एक्चुअली साइकिल. तो भगवान, हम लोग भगवान के मर्सी से हमें भगवान का एक डिवोटी का संग मिलता है. डिवोटी के संग से भगवान को भगवान का मर्सी वापस मिलता है फुल फ्लेज. अभी पहले तो सिर्फ ऐसा हाई लेवल पे पानी छिड़का ऐसा मर्सी रहता है, अभी प्रॉपर मर्सी मिलता है. और उस प्रॉपर मर्सी से हम वापस उनके भक्त का सेवा करने का हमें मर्सी मिलता है, विच इज इवन मोर रेयर अपॉर्चुनिटी. खुद शिव जी बोलते हैं उमा जी को कि जो सबसे रेयर है दैट इज बेसिकली सर्विंग द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. दैट इज एक्चुअली वेरी रेयर. शिव भगवान मिल सकते हैं लेकिन उनके भक्तों का संग मिलना, उनको सर्व करने का अपॉर्चुनिटी मिलना, इट इज इवन वेरी रेयर. So then your respectable younger brother who possesses 10 tendons, वो भीमा के बारे में बात कर रहे हैं. वो जरासंध को मारा वो उसकी बात कर रहे हैं. So verse 9 purport में ही Prabhupada has given some good information. So we'll quickly go through verse 9 and then we'll close for the day. So it is basically past time. So some stories. So Jarasandh, I hope you are able to see. So Jarasandh क्या था? वो मगधा का राजा था. So we know that, right? मगधा का राजा था. And his father, there is a small story behind his past time. So भद्रता करके उनके जो पिताजी थे, he was very powerful king, but he had no son. उनका कोई पुत्र, उनके although he married 2 daughters of King Kashi, उनके कोई बच्चे नहीं थे. So he was very disappointed. और एक बार ऐसे करके he got one from the rishis, he got some benediction कि तुम्हें पुत्र हो जाएगा. तो he was given a mango, so to be eaten by the queen. तो उन्होंने क्या किया, अभी यार 2 बीबी है, मैं कैसे उनके बीच में ये कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मैंगो का हाफ करके वो दोनों पत्नियों को उन्होंने आधा आधा करके मैंगो दे दिया और दोनों पत्नियां प्रेग्नेंट हो गई. सो ही वाज वेरी हैप्पी कि अभी उनकी पत्नियों को, दोनों पत्नियों को उनको बच्चा होने वाला करके. सो 2 आम को पीस किया तो वो 2 बच्चे मिल जाएंगे करके ही वाज वेरी हैप्पी. और 2 लड़के, बिकॉज वो लड़कों के लिए उन्होंने आम दिया था. दिस इज नॉट नॉर्मल मैंगो जो अभी के कुछ बाबा वगैरह जो डिस्गैस करते हैं फेक, वो लोग को ऐसा कुछ फल लेते हैं खाओ वगैरह. दिस ऋषिज आर वेरी पावरफुल ऋषिज. दे जैसे अभी मेडिसिन से वो कंसीव करने का होता है, फर्टिलाइजेशन करता है, जो साइंटिफिक प्रोग्रेस, साइंटिफिक कुछ मेजर से कुछ केसेस में होता है, नॉट इन ऑल, कुछ केसेस में होता है. that if that is possible then this is mantras are even more powerful and in all cases it will be possible. तो मंत्र के ऐसे तो जो कंसीविंग पावर है और जो फर्टिलाइजेशन है वो काफी सही हो जाता है. दैट इज द पावर ऑफ द मंत्र, वैदिक मंत्र. अगर साइंस कर सकता है तो वैदिक मंत्र आराम से कर सकता है. So it is not like कोई आम देगा खाएगा और sometimes I have seen people making fun of it. It is a different concept altogether. If science can do it with different apparatus and different medicines, then why not they can do it with mantras. So they became pregnant. He was very happy. लेकिन क्या हुआ था कि क्योंकि उन्होंने आम को आधा करके दिया था, जब डिलीवरी हुआ बच्चा है तो बच्चा आधा आधा करके आया, rather than 1 आधा आधा बच्चा आ गया. So they were like अरे, और वो they were like it was like a dead body. आधा बच्चा, it was like a dead body. तो they were like क्या करे करके. So they are useless to us. So the 2 parts were thrown in the forest. और बाद में वहां पे एक शी डेमन लेती थी. वो डेमन का नाम था जरा. वहां पे एक शी डेमन रहती थी और उसको यार फ्रेश बच्चा मिल गया, फ्रेश खून मिल गया, वो खाने को वो उतावली हो गई. और उन्होंने क्या किया, दोनों बच्चों को हाफ बच्चे को पकड़ा और उन्होंने ऐसे अभी बच्चा खाए कैसे देख, मतलब हम लोग करते ना आधा आधा ऐसे कभी कभार ज्वाइन करके देखते हैं पूरा कैसा दिखता था, तो बच्चा कैसे पॉसिबल दिखता है, इसलिए दोनों बच्चों को उसने करेक्ट कर दिया. और जैसे बच्चे को ज्वाइन किया वो बच्चे में जान आ गया और बच्चा ज्वाइंट हो गया और बच्चे में जान आ गया. सो
then that she took compassion towards that child, और उसने वो बच्चे को मारा नहीं और वापस वो राजे के पास चले गई और बच्चे को दे दिया. एंड किंग वाज वेरी हैप्पी. तो उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए करके. तो शी हैड नो डिजायर. शी सेड जस्ट सेड दैट कि ये बच्चे को मेरे नाम के ऊपर नाम दो, बिकॉज प्रॉब्ली शी हैड दैट मैटरनल अफेक्शन ऑलरेडी जाग चुका था, मे बी बिकॉज उसने छोटे बच्चे को देखा था, वॉट एवर रीजन. शी वॉन्टेड that child to be named after her name. So because her name was Jara, and this child was called as Jarasandha, one who was joined by Jara. So that was that is the story of Jarasandha, and he was very powerful. So in fact this Jarasandha was born as one of the part and parcel of demon विप्रचिति. तो शायद कोई डिमन रहेगा, उसका ही अंश उसमें आया रहेगा. The saint and who gave the benediction, ऋषि ने दिया था जो benediction, he was called Chandra Kaushika, who foretold of the child before his father. So Chandra Kaushika, जिसके benediction से बच्चा हुआ था, जो ऋषि था, चंद्र कौशिक करके थे. So now Jarasandh के पास काफी demonic qualities थे, and we know who is very merciful and he attracts the people in Tamasic is Lord Shiva, right? So naturally he became a devotee of Lord Shiva, the one of the merciful devotees of the most merciful devotees of the Lord. So Lord Shiva, so we also know other examples जहाँ पे जैसे Ravana भी है, he was a great devotee of Lord Shiva. So he used to Jarasandh, he used to sacrifice all arrested kings before Mahabhairava Shiva, who used to then small king to defeat करके उनको arrest करके उनके सामने उनकी बलि देता था, महाभैरव के सामने उन राजाओं की बलि देता था. So there are many devotees of Lord Mahabhairava or Kali Bhairav in the province of Bihar, formerly known Magda. So Jarasandh was a relative of Kamsa. So he was a maternal uncle of Krishna was a maternal uncle of Krishna. So Kamsa के relative थे. And so what I understand is Jarasandh was the father-in-law of Kamsa. तो ऐसे एक कौन है वो अमेंद्र प्रभु के एक लेक्चर में मैंने सुना था काफी पहले. सो वहां पे वो बता रहे थे, आई एम नॉट श्योर ऑफ द सोर्स, बट वहां पे उन्होंने बताया था कि एक बार जरासंध को उन्होंने रावण के बारे में सुना था कि वाज वेरी पावरफुल एंड ऑल. सो ही वांटेड या फिर जरासंध का कोई मैसेंजर या कोई सैनिक अटैक करने के लिए रावण के पास गया था. तो रावण ने पटक के उनको जरासंध के किंगडम में फेंक दिया सीधा उधर से जहां से था. तो जरासंध सेड कि he was very angry, ऐसा कौन मुझे चैलेंज करने आया. जरासंध वाज वेरी पावरफुल. तो वो आए और उन्होंने पूरा युद्ध करके निकलने वाले थे, उनके किंगडम से निकलने वाले थे, तब ऊपर से कुछ गिरने लगा. when he started seeing there were elephants that were falling in his kingdom, ऊपर से elephants गिर रहे थे. And then he was told that it was Ravana who was throwing elephants from his kingdom to his kingdom. So we can understand how powerful Ravana was. तो जरासंध समझ गए कि भाई ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, he is very powerful. और जब कोई अपने से पावरफुल है तो हम लोग क्या करते हैं, उनके दोस्ती करते हैं. So he gave his 2 daughters to Ravana and he became the father-in-law of Ravana. तो ऐसे करके उन्होंने पास्ट टाइम बताया था. So but nonetheless he was a relative, that is what Prabhupada confirms at least, that he was a relative of Kamsa. और जब कृष्णा ने उनको मारा था कंसा को, so Jarasandh became very angry and he wanted to revenge, and we have seen that 10-12 times he tried to kill tried to kill Krishna, but Krishna was every time kill everyone except Jarasandh. So the Jarasandh could bring more armies of demons and he could kill them. मतलब खुद जाके ढूंढ के जाके पकड़ के मारने से अच्छा Jarasandh खुद लेके आ रहा है तो उधर ही खत्म कर दो, Jarasandh को छोड़ता था. And he had bigger plans for Jarasandh. So he also wanted that those who served as military men for Jarasandh might not be killed. So therefore a plan was adopted by him to kill. So Bhima और अर्जुना एक बार जरासंध के साथ एक ब्राह्मण के रूप में चले गए थे, वो 10वें कैंटो में, और चैरिटी किया. तो जरासंध refused charity to any ब्राह्मण, never refused charity to any ब्राह्मण and he performed any sacrifice. तो वहां पे आज जरासंध for the facility to fight him, तो फाइट करने के 1-to-1, ताकि अननेसेसरी लोगों को मार के ये करके करने से अच्छा he said कि I want to fight with you 1-to-1. तो भीमा को आगे कर दिया. एंड कृष्णा also wanted that उसी तरह से भीमसेन ग्लोरीफाई हो जाए. And then this fight went on for days and days and days.
and Bhima became frustrated, disappointed. क्या है, मार नहीं पा रहा कोई. Jarasandh was very happy. We can very strong. We can understand कि भीमा भी एक झटके में मार नहीं पाए. Several days तक ये fight चालू रहा. And then Krishna told him about the secret. तो उन्होंने बताया था कि वो जॉइंट हुआ था बचपन में. तो महाभारत की टीवी सीरीज में मैंने देखा था, मुझे याद है, जहाँ पे एक स्ट्रॉ लेता है और स्ट्रॉ को निकाल के ऐसा स्ट्रॉ को पकड़ के, जो स्ट्रॉ ऑफ ग्रास रहता है, उसको ऐसे बीच में से फाड़ के ऐसा फेंक देता है. So Bhima understands that hint, and then he kind of tears it apart. और tear apart करने से, because he was already two different pieces joined together, तो उसको tear करना it was much easier. And then वो फेंकने के बाद Jarasandh was killed. So और जो किंग्स थे बाकी के, जिन्होंने महाभैरव के यज्ञ के लिए, बलि के लिए लेके आए थे, उनको रिलीज कर दिया था. And that is what Arjuna says over here, right? In this, कि जरासंध का महाभैरव यज्ञ में जो राजा थे उनको रिलीज कर दिया था. एंड thus ये सब किसके लिए पॉसिबल था? दिस वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ कृष्णा. सो वी विल टेक ए पॉज हियर. नेक्स्ट स्लाइड हम लोग नेक्स्ट में करते. सो डिसकंटिन्यू रहेगा नहीं. सो वी विल एनी क्वेश्चंस? एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग बिफोर वी मूव ऑन टू बिफोर आई क्लोज द रिकॉर्डिंग? एनी क्वेश्चंस? So we'll end our recording here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,